Hello, dear student. Good morning, everybody. I have discussed about the sine of this angle 0, 30 degree, 45, 60 degree and 90 degree. ऑलरेडी वैल्यू को याद कर सीखा, टेक्निक सीखा है। रेगुलर जी तुम लोग देखोगे मेरा पहले वीडियो में लिंक भेजोगे, लिंक के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो वैल्यू वैल्यू तुम लोग याद कराए थे, वो किसके लिए याद कराए थे? आई थिंक एवरीबॉडी हैज लर्न this value of this angle sine cos tan and they are reciprocal. So apply in this question. देखो some question evaluate the following question NCERT 8.2 exercise का हम तुम लोग को बुक से करा रहे हैं. First question I and two question I have done the previous video. Now you do the question number 1, 2 question देखो 2 into tan 45 degree plus cos square 30 degree and sin square 60 degree. Okay. So it is having the tan square. ठीक है बेटा, इसको tan square को लिखा है बेटा. ठीक है ना, 2 tan square 45 degree. First of all the value put and then their value का square. First equal to tan 45 degree value 1 into 1 is square. Then cos 30 equal to root 3 by 2. So now write root 3 by 2 square and minus sin 60 degree. Sin 60 degree it is also root 3 by 2 and then square. ठीक है ना? First of all value of this sin and then square. Okay, now result. That it is the 2 into 1 plus 3 by 4 minus 3 by 4. Is on the same like term, so they are the opposite sign, so it will be the combined for the 0. Now 2 1 2 is the answer. ठीक है ना? वैल्यू पुट करोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे, इंटीजर्स का रूल फॉलो करोगे. नाउ देन सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री. फर्स्ट ऑल द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, cos first is the sign of the fraction cos 45 degree. Cos 45 degree equal to 1 by root 2. Clearly लिखो. It has no square, 1 by root 2. Now sec 30 degree. Value of the sec 30 degree. Sec 30 means cos 30. Cos 30 root 3 by 2. So sec 30 2 by root 3. Okay, 2 by root 3. Clearly लिखो. And then plus cosec 30. So value of the cosec 30 will the sin 30 and then reciprocal. The sin 30 1 by 2. So cosec 30 2 by 1. ठीक, it is the reciprocal. Now it is the fraction. So the simplified. So it is the main fraction का double line and then 1 by root 2 upper and then LCM देखो root 3 is the LCM. So 2 plus 2 root 3. ठीक है ना? root 3 से डिवाइड करोगे. Next is the complex number. It is the complex number. So it will be the 1 into root 3 divided by root 2 into 2 plus 2 root 3. इतना चीज समझ गए बेटा? First into fourth in divided by second into third. This is the complex fraction, so it will be the simple fraction. Now result root 3 into 2 root 2 multiply and then plus 2 root 6. समझ गए इतना दो बेटा? 2 into root 6. Clearly 2 into root 6 बेटा. ठीक है? Now is that rationalize. ठीक है ना? rationalize करो, इसका ऑपोजिट साइन देकर मल्टीप्लाई करोगे. Now write root 3 into 2 root 2 minus 2 root 6. इसका ऑपोजिट साइन देकर अपन से मल्टीप्लाई एंड देन 2 root 2 plus 2 root 6 this into 2 root 2 minus 2 root 6. ठीक है ना? ठीक, opposite sign, numerator multiply divided by denominator. This is called the rationalization. Now is the result. इसका रिजल्ट कितना होगा? 2 root 6
देखो -2√18। नाउ दिस नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, ये ऐसा नहीं जब भी डिनोमिनेटर करोगे और नीचे डिनोमिनेटर विल बी द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला का। सर 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर, ठीक है ना, 2√6 के स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ लेट्स द another step here, okay, place is not here available, so now so remain same, numerator remain same, first of all equal and then okay 2√6 minus 2, देखो 18 का हम लोग लिख सकते हैं 19 का 6, ओके 6√2, इसको समझ गए बेटा। देखो 2 into 18 equal to 2 into 3 into 3 and 3 will come here and 3 to the 6, ठीक है ना बेटा, इसको समझ गए चीज को। हम 18 को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ राइट द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 and 2 8, so it will be the 8 minus this is the 2 square 4 and 6, okay 24। नाउ राइट हियर देखो यहाँ पे इसमें हम लोग का अरेंज कर लिया -6√2 एंड +2√6, क्यों अरेंज किया, डिनोमिनेटर में देखो माइनस आ रहा है, 24 इज ग्रेटर देन 8, सो 24 का साइन आएगा -16, ठीक है बेटा। इसके बाद आप तो देखो इसमें कॉमन आएगा -2 कॉमन, टेक द कॉमन -2, सो 3√2 -2√6, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले इसका रिमेनिंग आ गया। नाउ राइट हियर -16, क्यों 2 को दिया, देखो माइनस हम क्यों क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी फ्रैक्शन में निगेटिव नहीं रहते, न्यूमिनेटर में रह सकते, डिनोमिनेटर के काट दिया। इसके बाद ये भी देखो काटेगा यहाँ पे 8। नाउ राइट देखो 3√2 -2√6 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज द आंसर। ओके समझ गए चीज को। यूं हम क्यों इसके अरेंज किया, बिकॉज जब यहाँ पे माइनस ये जब फास्ट नहीं करोगे अरेंज करोगे तो माइनस डिनोमिनेटर से नहीं हटेगा, इसलिए माइनस से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। Okay, everybody, I think everybody has understood this about a positive division. Not only another question will come here. Okay. Okay, student. The next question, the question number 4. One question, evaluate the following. मैंने इसका वैल्यू फाइंड करोगे, कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा वैल्यू पूरा याद रहेगा उसका आराम से इसको पुट करोगे, अनसिंप्लीफाई करोगे, जो रूल का है, जो हम लोग का 5, 6, 7 के जिसका हम सिंप्लीफाई किया उसका अप्लाई करोगे। देखो इसका हम फिर भी काम एनसीईआरटी बुक में करते हैं, इसको अच्छे से करोगे सीबीएसई बोर्ड में जितना सारा क्वेश्चन आएगा फाइनल में बोर्ड में तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 4-5 को प्रैक्टिस करोगे। देन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू इक्वल एंड देन इट हैविंग द फ्रैक्शन, सो ड्रॉ द फ्रैक्शन लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मेन लाइन, ओके बेटा। नाउ देखो यहाँ पे sin 30 इक्वल टू 1/2, देन देखो 1 tan 45 minus cosec 60 means sin 60, here sin 60 means √3/2, so 2/√3। ये तो समझ गए बेटा, इसका क्लियर हो गया। नाउ इधर वैल्यू द sec 30 का वैल्यू पुट करने के पहले sin 30 का वैल्यू √3/2 एंड 2/√3, सो 2/2, बड़ी इजी से बेटा, एकदम रेसिप्रोकल 2/√3। नाउ cos 60, so cos 60 वैल्यू इसको 1/2, ये तो नोन है, प्लस tan 45 1 एंड cot 40 एंड रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 इज 1 ही हो जाएगा बेटा, ओके 1। नाउ सिंप्लीफाई, ओके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैविंग द फ्रैक्शन बेटा, देखो ये भी ऑल फॉर्म में फ्रैक्शन, इसके नीचे में 1 पकड़ लो एंड देन एलसीएम करो। एलसीएम 2 and √3 का देखो एलसीएम 2 into √3 एलसीएम। नाउ राइट स्टार्ट, ठीक है बेटा। इसके इसी टाइप का हम लोग करोगे, आप क्लियर लगे तो थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, टेढ़ा लाइन नहीं होना चाहिए, सो क्लियर राइट देखो, ओके ए फ्रैक्शन हो गया, मेन लाइन फ्रैक्शन देखो, दिस इज द मेन। इसके बाद देखो
रूट थ्री, थ्री यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा बेटा, प्लस 2 रूट 3 एंड माइनस रूट 3 का 4। समझ गए चीज बेटा? नीचे भी देखो इसी टाइप का, नीचे देखो तुम्हारा उसी टाइप का आ जाएगा, देखो एलसीएम 2 रूट 3, नीचे भी ऑल्सो रूट 3, 2 रूट 3। नाउ the root 3 equal to the 4 plus, okay, then the 2 to the root 3 plus 2 root 3. समझ गए चीज बेटा? नेक्स्ट I draw the main line. First of write the main line. First again, there is the like term 3 root 3. 3 root 3 minus 4 and नीचे देखो 2 root 3. समझ गए चीज बेटा? ओके, थोड़ा क्लियर लिख दे, थोड़ा 2 root 3 and then equal, this is the main. Okay, ना क्लियर देखो। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे देखो 4 से 3 root 3, इसका ऑर्डर के लिख दो 3 root 3 प्लस 4 then 2 root 3. ओके, एंड देखो this is the complex fraction, so first into last, means first into fourth and then second into third, so it will be the cancel level. So result will come here 3 root 3 minus 4 by divided by 3 root 3 plus 4. समझ गए बेटा रिजल्ट को? So 2 root 3 it will be cancelled. Now write the place is not here, देखो हम यहाँ पे कार्ड स्टार्ट कर देखो इस साइड में इक्वल दिया। फर्स्ट दिस इज द रैशनलाइज, रैशनलाइज इसका ऑपोजिट साइन देखो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द दिस फ्रैक्शन, देखो फर्स्ट राइट डिनोमिनेटर 3 root 3 plus 4, it has the plus, so it will be the minus 3 root 3 minus 4. ठीक है ना बेटा? तो root 3, देखो 3 root 3 minus 4 which will be the multiplied by the denominator as well as multiplied by the numerator. So numerator having the 3 root 3 minus 4 and 3 root 3 minus 4. ठीक है बेटा? Now write the simplify देखो multiply. So 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4 का whole square. So you can write the formula 3 root 3 a square minus 2 into 3 root 3 into 4 and then 4 का square b square. ठीक है बेटा? नीचे देखो किंतु जब भी रेशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, इसका मैंने इसका फॉर्म आएगा। So we write the 3 root 3 square minus 4 का square. ठीक है ना? Now write the here 3 root 3 is 9 and 3 27 minus 3 to the 6 and 24 root 3 plus 16. Now write the here, इसमें देखो 27 minus 16. समझ गए बेटा इसका? ओके, आई थिंक it was I understood. Now write here देखो simplify करो. Okay, just 27 and 16 the like term, so it will be simplify. देखो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे देखो 1, ओके 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 एंड बोलो ओके ऐड हो जाएगा, देखो 1 होगा 13 होगा, ठीक है ना? 13 it will be added 13 and okay 1 carry 3 43 minus 24 root 3 and it will be the subtract with us. ओके सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 1 एंड दिस 1। ओके, इसके नीचे आप कोई आंसर हम लोग को नहीं पढ़ सकते, ना कॉमन ना कुछ का, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 43 minus 24 root 3. So it will be the 16 and 27 add देखो 6 and 13 1 carry 3 and 4. So it will be the answer. ठीक है बेटा? अगर इसी टाइप क्वेश्चन को बार बार फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करोगे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा तुम लोग यू कैन डू। ठीक है बेटा? Okay, next pause the video, note down on your copy. Okay, hello student. The fifth question, it is also evaluated by
प्रूफ कोई भी आएगा इसी तरह इवैल्यूएट सेम चीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. So first of all put this all value first 5 into and it will be the main fraction line. Draw this line for fraction. Cos 60. So cos 60 half 1 by 2. So now write the 1 by 2 and then square. You can aram se देखो having the square. So value of this will be square. Now write come 4. 4 into sec. Sec 30 means cos 30. Okay, cos 30 root 3 by 2. So it will be the 2 by root 3. So reciprocal and then square minus tan 45 1. So minus 1 is square. Now sin 30 1 by 2 half then square plus cos 30 root 3 by 2 and then square. ठीक है बेटा. Now simplify. Square 1 square 1. Okay. Next 2 square 4 and it will be the 5 by 4. Okay. Understand बेटा. Then the plus. It will be 4 by 3. So it is 16 by 3. 16 by 3. Now 1 square बोलते हैं 1. समझ गए बेटा इसका. नाउ राइट दिस विल बी द 1 by 4 and then 3 by 4. 1 by 2 square 1 by 4 and root 3 by root 3 means 3. इसे रियल नंबर हम सिखाए थे. root 3 to root 3 3 3 by 4. Now let's simplify. This is the देखो. Okay. So first of all देखो इसमें क्या होगा देखो इसमें 12 LCM हो जाएगा बेटा. It will be the 12 LCM. Now 15. Okay, 15 plus then देखो 64 minus 12. Now नीचे देखो 1 by 4 plus 3 by 4. It will be देखो 4 plus 4. Okay, no 4 plus. Sorry बेटा. It will be 4 is the LCM. Now 1 plus 3. ठीक है बेटा. Now right here in this position देखो equal. Here देखो. Okay, 15 plus 16. It will be at okay 79. 79 minus 12 divided by 12. Okay, it will be देखो 4 by 4 means 1. ठीक है बेटा. Now right here देखो 1 तो 79 minus 12 divided by 12. Okay, and 4 4 1 cancel. So this is the main fraction. Now is the subtract beta. 7 and then 6 and 12. Okay, you can write the answer by इसको mixed fraction में लिख सकते देखो. You can write answer by mixed fraction देखो 560 7 by 12. ये भी आंसर लिख सकते हैं. You can write answer here by here भी लिख सकते हैं. 5 12 जा देखो 60 and 67. Okay, I think next question will come here. Okay, pause the video, note down on your copy. Student, अभी जमाना चेंज होगा, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो. तुम लोगों को मालूम है जो एमसीक्यू आता है 1 मार्क्स का. सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में एमसीक्यू में करोगे. कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट निकालो, जो ऑप्शन दिया उसके साथ मैच करोगे, जो होगा टिक लगा दो. ये तो है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. इसमें ए बी सी डी का ऑप्शन कौन सा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट करो. सो देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो एंड देखो क्वेश्चन देखो इस इज कॉल्ड द एमसीक्यू कहा जाता है. सो ऐसा अंदाज से नहीं होता गेस, ये अलग बात है, लेकिन इसको वर्कआउट करोगे देन यू कैन सिलेक्ट बाय चूज बाय यू हैव टू सिलेक्ट. सो 2 10 30 डिग्री write the question and then 1 plus tan square 30 डिग्री. ठीक है, ये कोई बहुत इजी है बेटा. वैल्यू पुट करो एंड दिस इज देखो 2 into tan 30.
tan 30 कितना बोलो तो 1/√3. Okay, tan 30 1/√3 divided by 1 plus ये भी देखो tan square, so it will be the 1/√3 tan 30 and then square. Okay, this is the main line. So you can work out again 2/√3 by 1 plus 1/√3 into the 1 square and √3 cos square 3. Now write here equal to, so write 2/√3 divided by 3 LCM, 3 LCM that is 3 plus 1. Okay, now write 2/√3 divided by 4/3. Okay, now simplify here. Now the complex number, this is the main, first into fourth. So 2 into 3 divided by 4 into √3. Okay, now place is not here. Again देखो यहाँ पे हम कर रहे देखो थोड़ा वर्कआउट करोगे then fine. So cancel this 2 and it can change देखो √3 को प्लेस में हम लोग राइट √3 into √3. Okay, into √3 divided by हम कुछ नहीं 3 को प्लेस को √3 into √3 and then 2 into √3. Okay, then cancel √3 to cancel, so it will be देखो √3/2. बोलो तो which value of the √3/2, which value यहाँ पे जो ऑप्शन दिया इसमें कौन सा वैल्यू तुम्हारा जस्टिफाइड करना देखो √3/2. देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे sin 60 देखो √3/2, cos 60 1/2, tan 60, तो यहाँ पे देखो हम लोग को लिख सकते देखो sin 60 डिग्री. So A is the match color. Sin 60 √3/2. So A option is correct and tick this option. ठीक है बेटा, तो √3 से हम लोग का वैल्यू के अनुसार देखो वैल्यू जहां पे दिया उससे हम लोग कर. Now this option देखो second question 1 minus tan square. So write the question number 1 and then work out. Without workout में you cannot select the tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 degree. Now value of the 1 minus 1 is square and then the 1 plus 1 is square value and then the 1 minus 1 divided by 1 plus 1 then the 0/2 equal to 0. So which option is correct देखो यहाँ पे D option is correct बेटा. ठीक है ना, टिक दिस मार्क. Okay, another question will come here. Okay, pause this video, note down on your copy. Clearly देखो बेटा. Okay. Okay, हेलो बच्चा, इसमें देखो एक ऑप्शन दिया sin 2a equal to 2 sin a, मतलब a विथ एंगल किंतु बेटा इज ट्रू, ए फॉल्स नहीं, ये करेक्ट है. फाइंड a का वैल्यू, a मींस कितना डिग्री. फर्स्ट ऑप्शन दिया a 0, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, d 60 डिग्री. जीरो के माथा में किंतु डिग्री बार बार बोले यूनिट नहीं लिखा जाता है. देखो हम तुम्हारा बुक में एनसीईआरटी बुक में 0 लिखा था डिग्री के ऊपर, हम डिग्री नहीं लिखा. 0 मीन्स 0, इसका डिग्री नहीं लिखा जाता बेटा. बहुत गलत चीज मेरे एनसीईआरटी बुक में बहुत गलत लिखा. ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखोगे. 0 मीन्स 0, इसका डिग्री नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसमें पुट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल LHS एंड RHS दोनों तरफ से इसको प्रूव करोगे. दोनों साथ में हमको करेक्ट है नहीं दोगे. ठीक है ना. LHS equal to sin 2a and right hand side RH is sin a, 2 sin a. दोनों की तो अलग मीनिंग बेटा. इसमें ये जो एंगल दिया गया एंगल को एक एक करके पुट करो. फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में देखो sin 2 into 0. सो sin 2 into 0 मैंने क्या होगा 0, तो sin 0 0 होता है. आगे देखो लेफ्ट हैंड इसका, हम a का वैल्यू जब हम दिया था एन, यहाँ पे a का वैल्यू में कितना हो गया, a इक्वल टू
0। सेम चीज इसमें भी, इधर भी a इक्वल टू 0 तुम यहाँ पे पुट करो। सो नाउ राइट 2 इंटू साइन 0। सो 2 इंटू साइन 0 0, सो 2 इक्वल टू 0। तो हम मेरा कौन सा वैल्यू में देखो यहाँ पे 0 ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो इसमें यदि करेक्ट होगा तो 30 में नहीं होगा, 45 में नहीं, 16 होगा। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। सो एमसीक्यू इसी टाइप होगा। आप 2 क्वेश्चन कर दे, लाइक दैट पुट करोगे। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan of a plus b equal to root 3 and tan of a minus b equal to 1 by root 3, a 0 greater than, okay, 0 is greater than a plus b and less than 90 degree, a given data condition, and a greater than b माने a एंगल का वैल्यू b से एंगल का वैल्यू से ज्यादा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंगल एंड b एंगल। ओके यार, दिस इज द गिवन कंडीशन, इस हम लोग को लेके चलो बेटा। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अबाउट tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3, ये गिवन होगा बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन, सो दिस इंप्लाइज आओगे एंड tan, और इसको रीड दो कैसे, हाउ टू रीड tan ऑफ a प्लस b। सो व्हिच वैल्यू ऑफ द tan इज रूट 3? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच वैल्यू, which angle of tan is equal to root 3? So first of all write the tan of a plus b, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे इसी तरह आता है। तो tan का कौन सा डिग्री में, tan कौन सा डिग्री में रूट 3 होता है, देखो बोलो tan 60 डिग्री। ठीक है ना बेटा। सो रूट 3 is replaced by the tan 60 degree because tan 60 is equal to root 3. Now you cannot cancel by the pen, so hidden this by the palm to palm, tan hidden होगा, tan को रिमूव करो। सो tan and tan बोथ साइड का यदि tan रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे बात जाएगा, देखो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा। नाउ राइट हियर अगेन देखो tan ऑफ a माइनस b, सो राइट हियर tan ऑफ, ठीक इसी टाइप इसको रिमूव करोगे, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो व्हिच वैल्यू एगो, ओके, दिस इंप्लाइज tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan 60 डिग्री, ओके, tan 30 डिग्री। रूट 3 tan 60, 1 बाय रूट 3 tan 30, and remove this tan by this palm hidden. So tan remove, you cannot cancel by the pen, पेन से काट नहीं पाओगे बेटा। से तुम लोग हायर क्लास में जाओगे, दिस इंप्लाइज tan a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग का लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया, देखो 2 वेरिएबल a एंड b अननोन हो गया। सो सिंपलीफाई करोगे, नाउ राइट a प्लस b माने एलिमिनेशन मेथड यूज कर, देखो 60 डिग्री एंड नेक्स्ट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो दोनों को ऐड कर दो। एलिमिनेशन मेथड में बोथ कोएफिशिएंट सेम है, सो इट विल बी ऐड, सो इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो b भी काट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इट विल बी ऐड, से a इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नाउ राइट सेम मेथड एंड a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री and a minus b equal to 30 degree, नेगेटिव इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक बार क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट को साइन चेंज होगा, प्लस माइनस एक कैंसिल, 2b इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, आंसर है ना क्या, तो ए का आंसर का वैल्यू आ गया मेरे पास से। इसी टाइप का देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1 बाई 2 एंड कॉस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है ना, ठीक इसी टाइप का। तो साइन का कौन सा वैल्यू में हाफ होगा, साइन 30। कॉस का कौन सा वैल्यू का हाफ होगा बेटा, बोलो कॉस 60, एंड देन सिंप्लीफाई। ठीक इसी टाइप का वैल्यू को करना होगा बेटा। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट को पॉजिटिव वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन कम। Okay, now student,
दिस इज माय द एक्स्ट्रा क्वेश्चन একটা तुम्हारा सामने दे क्वेश्चन नंबर 4 ओके देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इसमें राइट एंगल में 90 डिग्री हो गया ओके AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हाइट एंड डिस्टेंस में तुम लोग को जरूरत पड़ेगा कैसे एंड डिटरमाइन द एंगल BAC दिस एंगल फाइंड करोगे एंड ऑल्सो एंगल ACB फाइंड करोगे ठीक है ना ये दोनों एंगल को क्वेश्चन मानते हैं फाइंड करोगे हाउ टू फाइंड देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो इसको हम लोग को थीटा मान लिया बेटा ठीक है अकॉर्डिंग दिस एंगल दिस इज द P एंड ये तो H हो गया बेटा ठीक है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग द P एंड H कौन से रिलेशन में P एंड H है तो हम लोग को जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सीखा था साइन में देखो P by H कॉस में B by H tan में P by B सो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द साइन थीटा लिखेंगे बेटा क्योंकि ये एंगल को हम फाइंड करने के लिए जब साइन थीटा इक्वल टू P by H हम लोग का वो वाला फर्स्ट चैप्टर का यूज करो नाउ राइट हियर वैल्यू ऑफ दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू P इक्वल टू कितना देखो 3 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ओके देखो सेंटीमीटर कैंसिल एंड 3 2 जा 6 सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आसानी से तुम आराम से कर बेटा देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 द व्हिच वैल्यू ऑफ द साइन व्हिच एंगल ऑफ द साइन थीटा 1/2 तुम आराम से हाथ का चुटकी रहे ऐसे कर चढ़ जाओ साइन 30 सो नाउ राइट हियर साइन 30 साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 एकदम आराम से बेटा एकदम आराम से इसके बाद हम क्या बोला hidden by this your two palms and sin it will be cancelled removed from this equation this implies theta equal to 30 degree कितना आसानी से आगे तक इसका वैल्यू 30 डिग्री आ गया सो इट विल बी द 30 डिग्री एंड व्हाट विल बी दिस इसका वैल्यू होगा 90 minus 30 इट विल बी द 60 डिग्री ठीक है ना सो देयरफॉर आंसर इज देखो B एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री ये 60 कैसे मिला 90 minus 30 इज गिवन हो गया ये 30 60 एंड एंगल द एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा मेरा वीडियो जो तुम लोग को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर अदर क्लासमेट एंड प्लीज बेटा थैंक यू वॉच माय वीडियो को देख के सब्सक्राइब करोगे ये मेरा रिक्वेस्ट है ओके नेक्स्ट वीडियो विल कम हियर